And how are you? Fine. Okay, I think that now at this time you are very fresh and very motivated this time to have my lecture. Yes, sir. Okay. If you are a good listener, then you are a good speaker. I think that you never lose any lecture. You attend like lecture attentively, and I think this is your success. Okay, you have come here to get knowledge, and you are an every inch listener. That's why this is your success. I'm very happy to look at you, to listen you, and to have you being in the class, and this is your success. Okay, can I start now? Yes, sir. Okay, in the name of Allah, who is merciful, benevolent to his mankind, to his creatures. Okay, and it is if you are near to your Allah Almighty, you can explore each and everything in your life. You have inventive mind, you can explore the secrets of nature, and there is nothing beyond of your intellect and your ability. You can do it very easily. Everything is comprehensive for you. Okay, now this is the first lecture I delivered on Thursday. Now again I am standing in front of you with the same passion, enthusiasm, and zeal and zest. Okay, all goes if courage goes. You are the same falcon of Allama Iqbal. Now look at, I have already delivered my first lecture on verb form to be. Okay, you have been listening to me when I taught you about verb form to be. Is, are, am, was, were. Is, are, am, this is your present simple. Was, were, this is your present simple, past simple. Will be, shall be, this is future simple. Okay, how I'm saying this is simple? Okay, look at is, are, am. This is when I use these helping verbs without any verb form. This is simple sentence. If I say we are playing, this is not a simple sentence. You have to use only these helping verb, okay, these auxiliary verb in simple sentences. He is a boy, we are players, I am speaker. This is simple. I am not using here any verb form. I am talking of only simple sentences. Is, are, am. I already told you about this. Now this is second day lecture, this one. Only I am highlighting the previous my lecture. Is, are, am, this is simple. He is a boy, he is not a boy. Is he? अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्टली लोगों को हमारे दोस्तों को भी बाज़ों का शायद नहीं आती होगी। ये नॉट और नो के इस्तेमाल कब है? किसी भी मेन वर्ब के बाद नॉट, अब मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता, मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता, नो लगता है। जैसे आप कहते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, रॉन्ग होगा। यहाँ पे हैव इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब फॉर्म, इट्स नॉट। हियर वी आर यूजिंग हैव एज अ वर्ब फॉर्म। हैव, हैड। आई हैव अ पेन, आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन। इसमें आप इसमें नॉट नहीं लगाओगे क्योंकि मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता, नो लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, हैज, हैव, विल हैव। हैज, this is a you can say this is your verb form. Have is a verb form being used here, and will have is here verb form. And ये जो word होते हैं ना, has, have, will have, ठीक है, इनके बाद आपको you have to use first form of the verb. हम ऐसे नहीं कहेंगे I have not a pen, I have no a pen. Have मेन वर्ब है। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये बताया था, दिस वर्ब फॉर्म टू बी, इसका मतलब है कि इसका ये मतलब है, टू बी का मतलब है कि आप क्या हैं। यहाँ टू बी का मतलब आप क्या हैं।
ये वर्ब फॉर्म टू हैव का मतलब आपके पास क्या है। मिसाल के तौर पर आई सेज ही इज अ बॉय, इसका मतलब है वो क्या है। और यहाँ पे ये लिखो वर्ब फॉर्म टू हैव, इसका मतलब आपके पास क्या है। देखो ना, ही इज अ बॉय, इसका ये मतलब वो एक लड़का है, इसका मतलब आप क्या है। वी आर प्लेयर्स, वी आर नॉट प्लेयर्स, आर वी प्लेयर्स, इट मीन्स टू बी। फॉर्म टू बी मीन्स का मतलब आप क्या है। सिमिलरली विल बी, ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ प्लेयर, ठीक है। ही विल बी अ डॉक्टर, he will be a driver, he will be a pilot. Similarly, I also told you about the modal verbs. आप will be की जगह may भी इस्तेमाल कर सकते हो, may, might और must। may means maybe he is there, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो वहाँ हो। might be बहुत कम इम्कान है, ये मैंने पहले बताया इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। माइट बी देयर, हो सकता है, कम चांस है वो वहाँ पे। ही मस्ट बी देयर, इट इज़ इनएविटेबल, ये बहुत नागुज़ीर है, उसका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड। सिमिलरली अब यहाँ पे जब मैंने ये लिखा वर्ब फॉर्म टू बी का मतलब है वो क्या है, वो खुद क्या है। ही इज़ अ बॉय, वी आर प्लेयर्स, ओके, वी आर पुलिसमैन, आई एम अ बॉय, आई एम अ पोस्टमैन, आई एम अ पुलिस ऑफिसर, एम आई अ पुलिस ऑफिसर। तो जब भी वर्ब फॉर्म हैज, हैव और हैड आ जाए तो मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता, नो लगता है। मेन वर्ब के बाद आप नॉट नहीं, आई हैव नॉट अ पेन गलत है, आई हैव नो, मेरे पास कोई कलम नहीं है। Sir, I have no pen होगा या I have no pen? No pen. नहीं, देखिए ना, काउंटेबल नाउन्स के साथ आप आ लगाते, आई हैव नो, मोस्टली ऐसे होता है आई हैव नो पेन, ठीक है। खूबसूरत डिस्क्रिप्शन के लिए आप ऐसे कहें आई हैव, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं लगाना। वी आर पुलिसमैन, आई एम अ पायलट, आई एम नॉट अ पायलट, आई एम अ पायलट। ही इज क्लेवर, he is clever, he was clever, he was not clever, was he clever। so this is a form, verb form to be के वो क्या है, ये मैं लिखा हुआ है। वर्ब फॉर्म टू है, उसके पास क्या है। अब देखो ना, मैं ये कह रहा हूँ ही इज अ बॉय, इज नॉट अ बॉय, इज ही बॉय। वी आर प्लेयर्स, वी आर नॉट प्लेयर, आर वी प्लेयर, एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, yes I am not a doctor, I am a doctor, understand। Similarly, he was a boy, he was not a boy, was he boy। they were intelligent, they were not intelligent, were they intelligent। ये क्या है, इसमें कहा कि वो क्या है, ये असल में कंसेप्ट ज़हन में रखना। ही इज, वो क्या है, व्हाट इज ही, ओके। नाउ दिस इज विल बी का मतलब ये भी उसमें है, वो क्या है, ही विल बी अ डॉक्टर। इसको फिलहाल रहने दो, ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। He will be a boy. ही विल बी अ डॉक्टर, ये विल, अच्छा विल बी अ डॉक्टर, विल बी अगर नॉट लगाएं कहाँ आएगा। अब नॉट विल बी के दरमियान में आएगा, He will not be a doctor. ही विल नॉट बी। अब यहाँ पे नो नहीं लगेगा। आफ्टर मेन वर्ब यू हैव टू यूज नो, मेन वर्ब के बाद नो लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नो नॉट लगेगा, नो आपने वर्ब फॉर्म के बाद लगाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं ना, अच्छा ये हो गया। he will be, he will not be, will he be। understand, I am making simple negative and interrogative as well। this is to be, not this one verb form of to have। तुम्हारे पास क्या है, he has a pen, he has no pen। we have cards, we have no cards। well done, आपने no क्यों लगाया है जी, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद आपको नो लगाना है, नॉट नहीं लगेगा। नॉट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही विल नॉट हैव अ कप, अंडरस्टैंड। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू यूज नॉट और नॉट, अंडरस्टैंड। सिमिलरली might have, may have, might have and must have, likewise may be, might be and must be। okay, understand। ये तो मेरा previous lecture था। now come to the next one, modal verbs।
I have divided into 4 categories. Modal verbs I have divided into 4 categories. What they are? Can, it stands for ability. Can stands for you have a power. Can stand for ability. You have a power to do anything. It stands for ability. Can का इस्तेमाल करते, it's very famous, frequently used in spoken English. Can is used in spoken English everywhere. It's a modal verb. Can stands for ability. एक शख्स की ability नहीं है तो he has no power to do this one. इसका मतलब होता है ability. I can do it. मैं इसे कर सकता हूँ. I can do it. जहाँ पे आपकी कैपेसिटी हो काम करने की, वहाँ पे आप कैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें. आपको वो सवाल होता है कैन यू डू इट? यस आई कैन डू इट. इट मीन्स यू हैव अ पावर टू डू एनीथिंग. यू हैव अ पावर. आपके पास पावर है. इट्स अ इनबॉर्न पावर. ये आपकी पैदाइशी पावर है. यू हैव पावर टू डू दिस वन. कैन वहाँ पे इस्तेमाल होता है. इट्स अ मॉडल वर्ब जहाँ आपकी पावर हो. पावर के लिए कैन, एबिलिटी के लिए कैन. जेब में रख लें, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है. आई कैन डू इट. मैं ये कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव एबिलिटी टू डू इट. ये कैन का को 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. कैन, कुड और विल बी एबल टू. मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किए मॉडल वर्ब्स को. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. ये दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. एबिलिटी वाले जो आप पावर रखते हैं, 4 पार्ट्स में मैंने इसको तकसीम किया है. These are modal verbs. The first one, can. You can means, can stands for ability. आपके अंदर काबिलियत है तो can का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. I can do it. I can solve the problems. मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तमाम प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकता हूँ. समझ आ रही है? जहाँ पे आपकी एबिलिटी होगी वहाँ पे आपने कैन का जो इस्तेमाल. ये कैन क्या है? मॉडल वर्ब. ये क्या है? मॉडल. गुड. ये उसकी सेकंड फॉर्म है. याद रखिएगा ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इनके बाद यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म, कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, हैज डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, विल हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, नीड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, डेयर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म. आफ्टर modal verb you will have to use first form of the verb. After modal verb you have to use first form of verb. जो भी modal verb होंगे उनके बाद you have to use first form of verb. Understand? I can do it. वो ये काम कर सकता है. वो ये कार चला सकता है. He can drive this car. Can you drive this car? Yes, I can drive this car because you have ability to drive a car. You can drive the public. Yes, I can drive the public. मेरे पास इतनी सलाहियत है कि मैं पब्लिक को ड्राइव कर सकूँ, उनको मोड़ सकता हूँ. Understand? Similarly, could का मतलब सका, मैं वहाँ जा सका. I could go there. मैं वहाँ जा सकता हूँ. I can go there. मैं वहाँ जा सका या मैं वहाँ जा पाया. It is past tense. Power in past, power in present, power in past. What is power in present? I can do it. I could do in the past. Understand? Similarly, will be able to का मतलब है, इसका मतलब यही होता है मैं ये काम करने की काबिलियत रखूँगा. I will be able to go there. I will be able to do this. I will be able to fly the aeroplane. I will be able to solve the problems. Understand? Yes. This is for future. Future inability. Past inability. Present inability. Understand? Yes, sir. Similarly, I have divided into 4 parts. Modal verb in first part,
then modal verb in second part, then modal verb in third part, then modal verb in fourth part. Sir, I could do that. इसका मीनिंग क्या मैं शायद कर सकता नहीं शायद मैं I could do that मैं ये कर सका या कर सका करना चाहिए नो नो उस पे अभी चाहिए मैं आ रहा हूँ देखें I can do that मैं ये कर सकता हूँ I could do that मैं ये कर सका देखें ना उसमें ले आए उस कॉन्टेक्स्ट में ले आए कैन को कुड में ट्रांसलेट कर दे मैं ये काम कर सकता हूँ इन प्रेजेंट आई कैन डू दिस मैं ये काम कर सका उसका पास्ट आ गया ना तो आई कुड डू दैट ऐसा नहीं होगा आई कुड डिड दैट नो एवरी मॉडल वर्ब हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लियर होगा उसमें ले आना सका और सकता में मैं ये काम कर पाया आई कुड डू दैट मैं ये काम कर सका एक ही बात है कंसेप्ट तो उर्दू के सेंटेंस इधर उधर हो जाते हैं आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें इंग्लिश में अंडरस्टैंड सिमिलरली आर टू और इसका हाँ विल बी एबल टू इन फ्यूचर टेंस आई विल बी एबल टू दिस ये जो फ्यूचर में कैन है ये फ्यूचर में बेसिकली कैन है आई विल बी एबल टू डू दिस मैं फ्यूचर में ये काम करूँगा काम करने के काबिल हूँगा आई विल बी एबल टू डिलीवर अ लेक्चर I will be able to say this to solve the problem. I will be able to govern the public. I will be able to fly the aeroplane. ये उसमें आ रहा है फ्यूचर के अंदर इस पार्ट की समझ आई है मॉडल वर्ब प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर प्रेजेंट में कैन फ्यूचर में क्या है will be able to गुड मैंने आगे पीछे कर दिया एंड पास्ट में अंडरस्टैंड नाउ नेक्स्ट शुड का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते इसका मतलब चाहिए है अगर आप कहते हैं वी शुड ऑफर द प्रेयर तो इसका मतलब है अगर ना भी पढ़े तो गुनाह नहीं मिलेगा याद रखिएगा यू मस्ट हैव टू ऑफर द प्रेयर जहाँ पे लाजमी है वहाँ पे आप मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें अगर आप कहें वी शुड ऑफर द प्रेयर पढ़ो या ना पढ़ो गुनाह नहीं मिलेगा इस चाहिए में आता है ओके शुड यू शुड गो देयर इसका मतलब होता है कुछ सजेस्ट करना किसी को कोई तजवीज़ देना किसी को कोई एडवाइस करना शुड का मतलब होता है शुड मीन्स टू एडवाइज शुड मीन्स टू सजेस्ट यू शुड गो देयर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर आपको वहाँ जाना चाहिए कुदरत के लम्हात को एंजॉय करने के आपको वहाँ जाना चाहिए कुदरत के शाहकार को एंजॉय करना चाहिए तो शुड किस में आता है चाहिए यू शुड डू दिस आपको ये करना चाहिए यू शुड गो देयर बेटा ये समझ आ रही है यस सर शुड आता है चाहिए में ये जो मैं बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश की ट्रैक पे आपको लेके जा रहा हूँ और कोई ऐसा मैजिक नहीं है दुनिया में स्पोकन इंग्लिश आ गया So ये सेंटेंस करेक्ट आई शुड बी देयर हाँ मुझे वहाँ आई शुड बी देयर मुझे वहाँ जाना मुझे वहाँ पे होना चाहिए सर ये खुद से कह रहा है ये खुद है ना वो शुड के साथ बी आई मे बी देयर वो मैं बताऊंगा आगे इसमें इंटरचेंज होते हैं फिलहाल आप जो मैं बता रहा हूँ ना उस पर रहें फिर बाद में हम इस तरह हाँ यहाँ पे है शुड का मतलब चाहिए में आता है सिंपल चाहिए आप कभी ऐसे नहीं कहेंगे वी शुड ऑफर आवर प्रेयर हमें अपनी नमाज पढ़नी इसका चाहिए वहाँ होता है करो या ना करो ठीक है आप देखें यहाँ पे मस्ट फिलहाल हाँ मस्ट का मतलब ज़रूर है यू मस्ट ऑफर योर प्रेयर 5 times a day आपको एक दिन में 5 वक्त की नमाज आता चाहिए में ये भी है तो इसको आके लाजिम ये लाजिम में आएगा यू मस्ट ऑफर योर प्रेयर अगर दोनों को देखें तो हैं तो दोनों चाहिए लेकिन उनका इस्तेमाल अलग अलग है दिस मस्ट होता है पावरफुल एक्सप्रेशन है stronger एक मिनट अगर मैं फोन सुन मेरा मस्ट हो गया मस्ट की समझ आई यस सर अच्छा मस्ट को कोई आप बताएं एक छोटा का सेंटेंस बने एक मस्ट का बनाए आप I should be there when they शुड बी नहीं सिर्फ शुड का sir should हाँ हमें
दोस्तों से मिलना चाहिए, वी शुड मीट फ्रेंड्स, वी शुड गो देयर, वी शुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, वी शुड विजिट द पब्लिक, वी शुड विजिट द गार्डन, वी शुड मीट फलां 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 फलां। यहाँ पे शुड है, मस्ट का आएगा जहाँ पे लाजिम है। यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, मस्ट आ गया तुम्हें बड़ों की इज्जत करें। ये आ गया ना, देखें आना बैठ आता दोनों में चाहिए आता, लेकिन वो जरा मस्ट होता है पावरफुल। अगर वो ना करोगे तो गुनाह मिलेगा, जब अगर वो ना करोगे तो गुनाह मिलेगा। यू मस्ट ऑफर योर प्रेयर 5 times a day। मैं इसलिए ये डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। सिमिलरली R2 का मतलब यही होता है, लेकिन ये इखलाकी तौर पे होता है R2। फर्स्टली वही आर्ट टू हेल्प द पुअर्स, पुअर होता है, जब दा लग जाए तो पुअर्स नहीं होता, दा जब दा लगता है द पुअर, द रिच। अगर दा जो है ना इसके साथ फिर जमा नहीं लगता, अगर दा हटा दी जाए तो फिर वी आर टू हेल्प पुअर्स, बहुत सारे लोग। अगर दा लगाएंगे फिर ऐसा नहीं लगता, वो जमा के लिए हो जाता है। सर आर्ट की जगह मस्ट भी आया था ना, वही मस्ट है। एक मिनट बताता हूँ, ये दोनों फिर एक में है ना, दोनों एक में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो ज़्यादा इखलाकी बातें होती हैं वो R2 में है। वी आर टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, वी आर टू जो इखलाकी तौर पे है। वी आर टू रिस्पेक्ट टीचर्स, वी आर टू क्लीन द पब्लिक प्लेसेस। जो इखलाकी तौर पे आता है ना, ये इखलाकी जुर्म है। जो सोसाइटी के खिलाफ काम करोगे वो R2 में, वहाँ पे R2 लगेगा। जो मोस्ट अपर लेवल पे आ गया वो फिर दोनों के वो मस्ट में आ गया। वो यू मस्ट ऑफर योर प्रेयर 5 times a day, यू मस्ट रिसाइट द होली कुरान। अंडरस्टैंड? बेसिकली ये दोनों पैरेलल आते हैं, ये और ये, ठीक है। और ये शुड होता है, चाहिए में आता है, ये तीनों चाहिए में होता है, लेकिन इनका अलग अलग इस्तेमाल है कैटेगरीज के लिहाज से। सर जो हमने बोला वी शुड प्रे 5 times a day की जगह इन नहीं होगा, नहीं a day दिन के अंदर तो नहीं होता। आप देखें ना, a day एज ए होल लिए जा रहा है, आप उसको इन नहीं कर सकते। यहाँ पे यहाँ क्या आर्टिकल है, साथ साथ कुछ चीज़ें होती बैठ जाए। आर्टिकल 3 आर्टिकल होते हैं, वो डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है सिर्फ दा, इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन होता है। वो आगे जब इसका आएगा तो मैं बताऊंगा। अच्छा आप देखिए जी, ये क्लियर हो गया। अब आ गया हैज़ टू, हैव टू और विल हैव टू। उर्दू में कहते हैं मुझे वहाँ जाना जहाँ पे पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है, वहाँ पे हैज़ टू, उसे वहाँ जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो देयर, ही हैज़ टू ईट अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह सुबह खाना पड़ता है, उसे वहाँ जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो देयर, उससे मुझे बात करनी पड़ती है। ही हैज़ टू टॉक टू मी, उसे गाना गाना पड़ता है। ही हैज़ टू सिंग अ सॉन्ग, उसे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे कॉलेज जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू कॉलेज। हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू का मतलब पढ़ता है। हैज़ टू एक के लिए, हैव टू बहुत सारे लोगों के लिए, और विल हैव टू उसे फ्यूचर में पढ़ेगा। ही विल हैव टू गो देयर, उसे वहां जाना पड़ेगा। पढ़ेगा, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ेगा, पढ़ता है, पढ़ता है। अंडरस्टैंड? जहां पे कंसेप्ट पढ़ता है, मुझे आपसे बात करनी पड़ती है, आई हैव टू टॉक टू यू, इसका मतलब है मुझे आपसे बात करनी होगी। उर्दू नो नो नो, वो उर्दू है ना, उर्दू में आप कंसेप्ट डेवलप कर दें। जैसे मुझे सबक याद करना पड़ता है, आई हैव टू लर्न फॉर लेसन। लेसन जो डॉक्टर करते हैं, और CSS के जो ये पूरे पाकिस्तान में इसको क्या सर, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इस्लामाबाद में है, 6 रोड पे है, कैंट में है, पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में है, पूरे पाकिस्तान में है। ये एक लड़का था, उसकी किस्मत देखें, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो उसकी बहन थी, मैं उस वक्त लाहौर में था, तो उसकी सिस्टर थी, तो उन दोनों ने ना एक बैठक के अंदर एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू की। करते 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 उसने ब्रांचेस लाहौर में बनाई और पूरे पाकिस्तान में।
अब चीन है उसका मालिक है। इस तरह पंजाब का सर वो लड़का हाँ पहले आज के 25-30 साल पहले की बात है। तो अब ये देख लो पंजाब कॉलेज वाला कॉमर्स की ट्यूशन पढ़ाता था बैठक के अंदर नियम में। आगे आपको पता अल्लाह ताला का काम है। सर तोशिया का भी साथ है फिक्स। टोर्शिया के साथ इनके और भी ब्रांचेस है। मैं इधर वाली में पढ़ाता हूँ स्टार के साथ। इसे 6 रोड पे जो टोर्शियस के साथ है जी ना, सर। ये ये कौन शादिया सा के आगे जो है स्टार हाँ। से थोड़ा पीछे रहता है। हाँ वही उसका फर्क राइट साइड हैज टू पढ़ता है, हैव टू जमा के लिए, विल हैव टू फ्यूचर के लिए। यूज टू का मतलब मैं ये काम किया करता था। उर्दू देखे ना, किया करता था, आई यूज टू डू दिस। मैं उठा करता था, आई यूज टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। मैं बड़ों से बात किया करता था, आई यूज टू टॉक टू द एल्डर्स। मैं सुबह सवेरे इबादत किया करता था, आई यूज टू ऑफर माई प्रेयर्स अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं आम खाया करता था, आई यूज टू ईट द मैंगोज। अंडरस्टैंड? यूज टू का मतलब किया करता था। ये साथ रखिए, ये पास्ट के लिए किया करता था। ये यूज टू देखो कितने कितने प्यारे वर्ड हैं, इसी से स्पोकन बनती है ना। मैं यहाँ ये काम किया करता था, आई यूज टू डू दिस। मैं लोगों से बात किया करता था, आई यूज टू टॉक टू द पीपल। मैं इस तरह बनाते जाए, मैं खेला करता था, इस तरह बनाते जाए। आई यूज टू का मतलब है किया करता था, किया करता था, यानी ये इसका मतलब है बार बार किया करता था। रिकरेंटली इन द पास्ट, पास्ट में किया करता था, किया करता था, किया करता था, किया कर, ये उन्होंने लगाया हुआ है। यस सर, किया करता था, क्या करता था। अंडरस्टैंड। इसी तरह नीड टू, था आई नीड टू गो देयर। I need to do this। आई नीड टू का मतलब है मुझे जरूरत, जरूरत जरूरत होना। ठीक है, आई नीड टू डू दिस, मुझे इस काम करने की जरूरत है। अगर नीडेड कहोगे तो वो जरूरत थी, ये तो उसमें आ रहा है ना, या नीड का रही है, नीडेड का रही है। विल नीड होगा, आई विल नीड टू डू दिस, आई नीड टू दिस, आई नीड टू डू दिस, आई नीडेड टू डू दिस, आई नीड टू डू दिस। मुझे इस काम, ये जरूरत है ये काम करने के लिए। किस तरह इस्तेमाल करना है सर। नीड होता है जरूरत, ये सिंपल है। इसको नीड के बाद टू लगता है, इसलिए इन्होंने इसको बनाया कि नीड के बाद टू लगता है। देखो सब के बाद ये टू वाले हैं, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू और डेयर टू। डेयर टू का मतलब मेरी जरूरत है ये काम करने के लिए। आई डेयर टू डू दिस, ये काम मेरी जरूरत है, मैं ये काम करूँ। आई डेयर टू गो देयर, मेरी जरूरत है मैं वहाँ जाऊँ। आई डेयर टू टॉक टू यू, मेरी जरूरत है मैं तुमसे बात करूँ, मेरी जरूरत है ये काम करने के लिए। इसका मतलब है आपके पास पावर है, यू नीड टू, यू सर, नीड। फिर हम किस तरह पता चलेगा कि सर ये इधर कैन भी सर वो पावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सर? नहीं, ये तो और सेंस में आ रहा है ना, वो मैं थोड़ा ऐसा कर गया हूँ। बेसिकली आप मिलते जुलते हैं ना, लेकिन आप ऐसे कहने, रोजमर्रा जिंदगी में यूज टू का मतलब किया करता था, नीड टू का मतलब है जरूरत होना, डेयर टू का मतलब है जरूरत होना। मैं जरूरत का लफ्ज़, ये थोड़ा डेयरिंग है, जरूरत होना। ये ज़रा उसमें आ जाता है कि तेरी, मैं तुम्हें बताता हूँ गुड चैलेंज के लिए वो, और है सिंपल कैन, वो पॉजिटिव सेंस में थोड़ा आ जाता है। ये थोड़ा सा होता है, थोड़ी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें बताता हूँ। आई डेयर टू टॉक टू यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी जरूरत है मैं तुमसे बात करूँ। अंडरस्टैंड? सर यूज टू अगर पास्ट में यूज है तो नीड टू किस प्रेजेंट में यूज। देखे ना, आई नीड टू दिस, मुझे अगर आप उसको नीडेड कर दो तो ये पास्ट में चला जाएगा। I need present. I need to do that. आई नीड, देखो ना, मुझे ये जरूरत थी कि ये I काम need करता। ये भी पास्ट में लेंगे। आई नीडेड कह दो ना उसको, तो ये सिर्फ उन्होंने इसके इसमें इसको मॉडल इसलिए कहा कि इसके साथ भी आप इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल करते हो। सिर्फ सिंपली ये कह रहे हैं कि यूज टू के बाद, यूज टू में ऑलरेडी ईडी लगा हुआ है, काम किया कर दिया है ही पास्ट में। नीड को प्रेजेंट पे करो, आई नीड टू डू दिस, जरूरत है मैं ये काम करूँ, ये जरूरत थी कि ये मैं काम करता। आई नीडेड टू डू दैट, आई नीडेड टू डू दैट। इस तरह देखिए, डेयर टू का मतलब आई डेयर्ड, ईडी लगा दो तो पास में चल जाए। आई डेयर टू डू, आई डेयर टू टॉक टू हिम, मेरी उस वक्त जरूरत थी कि मैंने उससे बात की। पास्ट टेंस है ना, देखो फॉर्म तो प्रेजेंट की है ना, फर्स्ट फॉर्म को आप सेकंड में ले जाओ, वो तो यूज टू को ऑलरेडी पास्ट के शो कर रहा है, हम काम किया करता था। क्लियर? आगे आ जाएगी। अच्छा याद रखिएगा 400 वर्ब्स। सर आपको रिकग्नाइज बहुत ज़्यादा कमजोर है सर।
हाँ We have no permission of go to kill this. वोकैबुलरी सवाली निशान सब के लिए, जो बड़ा एमए का बंदा है उसके लिए ये होता है कि जितने वर्ड्स आपके पास होंगे उतना आप स्पोकन करेंगे। सबसे ज़्यादा अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस अभी आपको समझ आएंगे। सबसे बेहतरीन तरीका स्पोकन इंग्लिश का है टू यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव क्या किसे कहते हैं? आर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले और एडवाइस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के थ्री जहाँ पे आर्डर हो, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे आर्डर हो, यहाँ पे रिक्वेस्ट हो, यहाँ पे एडवाइस हो। My teacher added to me that. गुड। आप देखें ये जो सेंटेंसेस है ना, ये वर्ब फॉर्म प्लस इस तरह ये बनते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर है नेगेटिव प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो गो देयर, वहाँ जाओ, ये आर्डर है ना। कम हियर, कितना इजी, पूरे छोटा सेंटेंस पूरा बन गया। Come here. गो देयर, वहाँ जाओ। Come here. कम हियर, यहाँ आओ। गेट अप, खड़े हो जाओ। Stand up. स्टैंड अप, At last. खड़े हो जाओ। सिट डाउन। इस तरह आप ना जो रोजमर्रा के ना आप सेंटेंस का वर्ड्स बना के लें। जैसे गेट अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, स्पीक, Get lost. वीप, गेट लॉस्ट, शट अप, वेक अप, लिसन, हेयर, Yeah. स्माइल। ये जो रोजमर्रा के नहीं है, आपने रोजमर्रा के हर किसी ने रोजमर्रा के वर्ड आपने 50-50 मैंने कल लाजमी मस्ट है 50 आपने रोजमर्रा के। लिसन, एक लिसन है, एक हेयर है। लिसन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिसन एंड हेयर? ये सुनना, ये सुना। नो, दोनों का सुनना है जी। लिसन का मतलब होता है मेरी बात सुनो। हाँ, हियर जो बैठे हैं, ग्रुप बैठा है, इन सब की कोई भी हो सकता है, मैं नहीं हो सकता उसमें। हियर आपका कुछ ही। लिसन का मतलब है गौर से सुनना, लिसन, लिसनिंग द न्यूज़। हियर का मतलब गौर नहीं काले आवाज आ रही है। Yes. आई एम हियरिंग सम पीपल, इसका मतलब मैं वैसे नहीं मेरा दिमाग उनकी तरफ, लेकिन सुन रहा हूँ उनको, चुप करा। Yes, sir. लिसन का मतलब है आप ज़हनी तौर पे कंसंट्रेट कर रहे हो कि तुम सुन रहे हो। Yes, sir. आई एम लिसनिंग द म्यूजिक, कि मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, इसका मतलब मेरी कंसंट्रेशन है। Interest. आई एम गुड, आई एम हियरिंग द म्यूजिक नहीं होगा, आई एम लिसनिंग द म्यूजिक। लिसन जो होता है गौर से सुनना, और हेयर का मतलब होता है वैसे आवाज़ आ रही है लेकिन मेरी कंसंट्रेशन नहीं है। Noises. वॉइसेस, बड़ी आवाज़ ऊंची आ रही है लोगों की। अच्छा देखें, ये मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहे हैं। कुछ ऑर्डर वाले होते हैं, कुछ रिक्वेस्ट वाले होते हैं, कुछ एडवाइस वाले होते हैं। गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, लिसन। ये एक एक वर्ड का पूरा सेंटेंस है। ये स्पोकन इंग्लिश है। लिसन, सिट डाउन, लुक एट, लिसन, हियर, गो देयर, कम हियर। ये जो डेली पढ़ते हो ना, डेली उर्दू तो आती है ना, इस तरह ही सुनो, जाओ, भरो, खोलो, इधर आओ। मुस्कुराओ, इधर आओ। ये 50-50, जब सारे 50 कितने बन जाएंगे? 50-50-50-50। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जुबानी सुनेंगे? नहीं, वो कॉपी के ऊपर और कॉपी पे लिखने हैं। नहीं नहीं सर, जब इधर आएंगे क्लास में, आप जुबानी सुनेंगे ना। हाँ हाँ, मैं देखूंगा कि जनाब ने क्या लिखा है। Ah. ठीक है ना, ये प्रैक्टिस करोगे फिर उसी को हम बोल लेंगे। वही आप बोलोगे तो अल्टीमेटली वो स्पोकन हो जाएगी। Yes, sir. ये आपने, ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, आपने तीनों को बनाने हैं। ऑर्डर, गो देयर, कम हियर, पानी भरो, फेच वाटर, पानी ले आओ, पानी पियो। ब्रिंग वाटर, देखो, लुक एट, सुनो, लिसन, पानी भरोगा क्या कहा है आपने? फेच Fetch वाटर, water. यानी कि जाओ और पानी भर के Fetch the water. FETCH। मैं बड़ा खूबसूरत वर्ड आपको साथ साथ बताऊंगा। Sir, हम सर 20 वर्ड वर्किंग मेरी बोर्ड पे लिखना हम सर। हाँ, ये को मैं भी लिखूंगा, आप भी लिख लेंगे। Yes, sir. हम भी ये को समुंदर है यार, वर्ड आप भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा 50-50 का लेके तो ले आने, मैं भी 20-20 इस तरह मैं भी ऐड करता जाऊँगा। Yes, sir. अच्छा देखें, ये हो गया। अब आपने एक इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर के हैं। ये तो हुक्म वाला कह रहे थे, गो, सिट डाउन, कम हियर, लिसन, ये ऑर्डर। एक मैंने कहा
मैंने ऑर्डर का, फिर रिक्वेस्ट प्लीज, उधर प्लीज आएगा, मेहरबानी करके, उधर आपने मेहरबानी लिखा, प्लीज, जहाँ मेहरबानी रिक्वेस्ट ही होगी, मेहरबानी करके इधर देखो प्लीज लोग क्या, इसका मतलब कोई ऑफिसर नहीं है, कोई आम सा बंदा है मेहरबानी करवा रहा है। ऑफिसर कभी ये नहीं कहेगा, बॉस कभी ये नहीं कहेगा मेहरबानी करो, वो ऑर्डर कर, रिक्वेस्ट होगी प्लीज, मेहरबानी करके मेरी बात सुनो, मेहरबानी करके इधर आओ, मेरी मदद करो। अब मेरी मदद करो, कोई गरीब ही होगा था मदद कराएगा ना। जो इंफीरियर किस्म के सेंटेंसेस हो जिसमें मेहरबानी का कंसेप्ट है वो रिक्वेस्ट में होती है। मेरी मदद करो, पुलिस का लफ्ज आएगा, याद रखिए यहाँ पे PLEAS पुलिस है, वहाँ रिक्वेस्ट हो गई, मेहरबानी करके उसमें लफ्ज ऐड कर दो। अब दूसरा है एडवाइस, मशवरा देना। मशवरा देना, एडवाइस का मतलब सजेस्ट करना होता है, किसको मशवरा देना होता है, आइडिया देना। मशवरा क्या मतलब है, वक्त मत जाया करो, डू नॉट वेस्ट टाइम, बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट, ये उसमें आ रहा है ना। 3 तरह के सेंटेंस बनाने, ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले, एडवाइस वाले, एडवाइस वाले। फिलहाल इन 3 तरह को और भी हैं, लेकिन ये मोटी मोटी बात है, इस पे फिलहाल रहो। 3 तरह के, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कौन सा, एडवाइस, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, ये आपने इस तरह बनाने, ये 50-50 बनाने हैं। फिर देखें उसी के नेगेटिव होगा डोंट, उसी को डू नॉट में ले आओ, डोंट गो देयर, पहले कहा गो देयर, वो ऑर्डर कर, पहले कहता है मत वहां जाओ, डू नॉट गो देयर, डू नॉट, डोंट 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 डोंट, डू आई गो देयर। अब उसको आप डू उधर कर दो ना, जब डू आई कहोगे ना तो फिर वो सवाल ही हो जाएगा, कहता है क्वेश्चन है, डू आई गो देयर सर, यू डोंट गो देयर, आगे आप जवाब दें। सर डू नॉट और डोंट में क्या फर्क? उसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म, जैसे डज नॉट को डजंट, वो स्पोकन में मैं सारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सिखा दूंगा। शुड नॉट को शांट, वुड नॉट को विल नॉट को वुडंट, शुड नॉट को शांट, डज नॉट को डजंट, वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल इस तरह है, थोड़ा सा लंबे सेंटेंस में फिलहाल है, उधर बाद में आइएगा। अंडरस्टैंड। अब नेवर और ऑलवेज, वो कहता है अब नेवर और ऑलवेज ऑर्डर में, सजेस्ट में और एडवाइस। नेवर, नेवर गो देयर, कभी मत वहां मत जाओ, नेवर बस लगा देना, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, कभी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज ओबे द एल्डर्स, हमेशा बड़ों की इज्जत करो। वो बात साथ ये लगाते जाना है, नेवर और ऑलवेज, ये 2 वर्ड है, ये भी स्पोकन में ज्यादा इस्तेमाल है। नेवर गो देयर, वहाँ मत जाओ, ऑलवेज गो देयर, हमेशा मत जाओ, नेवर इनसाइड द एल्डर्स, बड़ों की इंसल्ट कभी न करो, ऑलवेज लिसन द एल्डर्स, हमेशा बड़ों को सुनो। सर तो हिंदी क्या इंग्लिश होती है? किसका? अरे आपकी इंसल्ट, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट, HUMILIAT, ह्यूमिलिएट, इसका मतलब किसी को कम तर समझना। अच्छा, उसके बाद एक होता है लेट, आओ चलें, आओ आओ यार वहां चलें, लेट्स गो देयर, लेट्स कम हियर, लेट्स प्ले, लेट्स स्लीप, लेट कम, आओ आओ चले, आओ आओ चले, आओ आओ चले, यहाँ पे लेट है। बच्चों अब ये प्रैक्टिस के लिए आपके, अगर आप स्पोकन, मेरा काम है आपको ट्रैक पे चलाना, आगे जितनी प्रैक्टिस है आपकी, अगर नहीं करोगे तो स्पोकन नहीं है। हमने आपको फॉर्मेट दिया है, उसके साथ साथ आप लिसन करो, जो अंग्रेजी बोल रहे उनकी जो कन्वर्सेशन है उनको सुनो, ये प्रैक्टिस होती है। आगे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपकी अपनी है, सेंटेंस बनाना, वर्ड्स वोकैबुलरी बढ़ाना, सेंटेंस बनाना, इस स्पोकन आती है। मैंने आपको दे दिया है कि 50-50 आपने वर्ड्स बनाने हैं, फिर वही हम उसको यूज़ करेंगे स्पोकन के अंदर। तो लिसन करो, गुड लिसनर्स, गुड स्पीकर, एक्सेंट अच्छा होता है, क्योंकि हमारा एक्सेंट तो पाकिस्तानी होगा ना, हमें सिर्फ अंग्रेज, हमें सिर्फ बोलना आ जाए बस, हम खुद अपने वो बनाते वो तो खुद बनाते हैं, बस सुन के बच्चे मुंह टेढ़ा करके बोले है, हम तो टेढ़ा करते, हमें सिर्फ ये है कि हमारी बात अंग्रेजी में आगे चली जाए। ठीक है बच्चों, ये आपको, आप बस समझ गए। अब आपको मैंने ट्रैक दे दिया,
अब आपने 50-50 सेंटेंस बनाने और ये जो मैं ऊपर सारे बताए इनके सेंटेंस बनाओ, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव। उस तरह बनाने से ना मुख्तलिफ सब्जेक्ट ले लो, ही शी इट आई वो यू दे, ये टोटल कितने हैं? ही शी इट। प्रॉब्लम ये होती है, ऐसे कर लो, मुंह इधर कर प्रॉब्लम ये लो, होती है सर के मुंह इधर कर लो, जैसे पहले बैठ सर पानी